see, because deceptive translations تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں نا. انگلش میں پڑھتے ہیں, and those who no longer expect menstruation, یہ ہیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں. اگر تمہیں شک ہو, among your women, if you are in doubt, their period is 3 months, تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. And those who have not yet menstruated, جن کو کبھی ابھی حیض نہیں آیا, لم یحدنا. لم یحدنا, لم is a word, it's not la. La کہتے ہیں نہیں. لم means never, never yet. Who has never yet. لم, not la. La is لا الہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, right? لا الہ الا اللہ. Lam is used as in never, a statement of confidence with saying never, right? Never have been menstruated. اب ان کی عدت کیا ہے, is also کتنا ہے, 3 months. Now یہ آیت ہے سورہ طلاق کی. طلاق بتا رہی ہے کہ جب اپنی ایسی بیویوں کو طلاق دو جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں. سو اس کا مطلب ہے محمد کی obviously عائشہ کو 9 سال میں حیض آ گیا تھا supposedly, exceptional case تھا اس زمانے میں, 9 سال میں حیض آ جاتا تھا. Fair enough, doesn't matter. I'm not going to discuss that at this moment. So different topic ہو جائے گا. So اگر ان کو حیض کبھی آیا ہی نہیں, they are so young. By the way, ابن کثیر, قرطبی, تبری, جلال الدین السیوطی, ابن عباس, and every single early شان نزول says clearly یہ بات بولتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے ینگ گرلس کی جو کہ ابھی بہت چھوٹی بچیاں ہیں, ویری ینگ, بہت چھوٹی ہیں, جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, یعنی وہ 9 سال سے چھوٹی ہیں, کیونکہ محمد کی بیوی کو 9 سال میں حیض آ گیا تھا. کیسے آ گیا تھا پتہ نہیں. تو قرآن اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ان سے شادی بھی کر سکتے ہو, شادی کر کے ان کو طلاق بھی دے سکتے ہو. How, why is in Indian constitutional Islamic law وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ سوری, میں نے کہا کہ انڈین شریعہ لا اس چیز کی اجازت کیسے نہیں دے سکتا, جبکہ یہ تو قرآن کا ایسنس ہے. It is the essence of یہ Quran. قرآن کا بالکل ہے, لیکن جو شریعہ لا کے حساب سے کیسز دیکھے جاتے ہیں اس میں پیریڈز کے بعد ہے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ شریعہ لا بھی جو ہے وہ انڈیا کی سیکولر ویلیوز کو دیکھ کے موڈیفائی کیا گیا ہے. That's the major point that I want to bring in. موڈیفائی کیا گیا ہے. یہ اللہ کے ماننے والے کہاں ہیں؟ یہ سارے مسلمان تو ملا کے ماننے والے ہیں. Oh my goodness. Say it again. ایک تو دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ ہو جائے, ریپیٹ ہو جائے, مکرر. کیا دوبارہ سے بولوں؟ یہی اسٹیٹمنٹ کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے ہندوستان کے مسلمان اور جتنے بھی پاکستان کے مسلمان ہیں وہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں, وہ ملا کے ماننے والے ہیں. یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ حدیث اور پرسنل لا کے ماننے والے ہیں. واہ ساحل بھائی, گیم سمجھ لگی؟ ساحل بھائی ہمارے چینل پہ کتنے لوگ آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں میں ملا کو نہیں مانتا, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, جب قرآن دکھائے تو جلیبی بناتے ہیں. یار ساحل, imagine that this is the reality. This girl is speaking the truth, utmost truth. ستیہ بول رہی ہے, ستیہ, بغیر ڈر کے بول رہی ہے. یہ کون سی لائر انڈیا میں پیدا ہو گئی یار؟ اس کو سپورٹ کرو بھائی لوگوں, اس کو سپورٹ کرو یار, اس کو پروٹیکشن دو. یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں کس ماں نے ایسی لڑکی جنی ہے یار. تو اس ماں کو بھی میری طرف سے سلیوٹ ہے یار. یہ اس کو سپورٹ کرو یار. یہ شی از اے شائننگ اسٹار فار دا مسلمینز ان انڈیا کوائٹ فرینکلی. بلکہ بھائی پورے دنیا میں ابھی نازیہ جی کی دھوم مچی ہے. میں نے کہا نا, جو ابھی جو ہے نا, صرف پہلے چلتا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے تو لوگ کہتے تھے فوگ چل رہا ہے. اب کوئی پوچھے گا انڈیا میں کیا چل رہا ہے تو جواب آئے گا کہ نازیہ چل رہی ہے. اچھا نازیہ جی, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بھی ابھی ڈسکشن ہمارا پورا اسی پہ ابھی چل رہا ہے, تو جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے رسول اللہ کو لے کر کہ 6 سال کی بچی کو بیٹی بھی بنا سکتے تھے, تو اسی طریقے کے آس پاس کا سٹیٹمنٹ ہماری نپور شرما جی جو کہ اور ایک شیرنی ہے انہوں نے بھی دیا تھا. تو پھر اتنا بوال کیوں مچا
और आप पे क्यों नहीं मच रहा है? Why? अच्छा, मैं इसको पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है। और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर। और डेफेमेशन नोटिस तो मेरा 1 मिनट में चला जाता है, चाहे वो एक्स्ट्राडीट करके करना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, डेफेमेशन नोटिस तो मैं भेज देती हूँ। तो जितने भी मुल्ला है ना, अब जैसे नुपुर शर्मा को कुरान के बारे में पता नहीं था, उसने थोड़ा बहुत जो भी जाना था उसने उस हिसाब से बातों को अग्रेशन में रखा था। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कुरान के वर्सेस के हिसाब से बात करती हूँ, सूरा नंबर के हिसाब से बात करती हूँ। तो क्या होता है कि इनके मुंह में जुबान नहीं होती और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे पाते, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ले एक्शन मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल ले एक्शन। तो अब होता है कि इनके पास कोई जवाब होती नहीं है, तो अब ये बोलेंगे क्या बेचारे, इसलिए चुप हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर फतवा जारी कर नहीं पाते, कहते अगर ये कहते हैं कि भाई हम फतवा जारी करेंगे, तो मैं इनको कहती हूँ कर दो। तू मुझे घर में, मैं मुसलमान हूँ या मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं रोजा रख रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो तू मुझे घर पे आकर रोकेगा क्या? और तूने अल्लाह से कौन सी चिट्ठी लाई है कि हम फतवा जारी करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है? तो मुझे वो चिट्ठी दिखा दे बस। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फुल हमायती हूँ नुपुर शर्मा जी का। बाय द वे, आपको शायद पता नहीं है, मैंने उनके बारे में वीडियो भी बनाई थी। मैं उनका फुल 100% सत्य हमायती हूँ। अगर मेरी पहले से 3 बीवियां ना होती तो मैं उनको शादी का पैगाम दे देता, शायद वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैगाम जरूर भिजवा देता मैं उन्हें। इतना यानी कमबख्त जिस इंसान है, 3 बीवियां रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था। मुझे 3 सेक्स टॉय चाहिए। नहीं, वो मुसलमान था ना, तब 3 शादी की। अब इस्लाम छोड़ा तो छोड़ूं कैसे? बल्कि चौथी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी शायद वापस आ जाए। आजकल वो भी बड़ी इस्लाम छोड़ के। शिकायत है मेरी अल्लाह पाक से, बड़ी शिकायत है जी, मेरी। जी, जी, मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूंगी जी, जी, करिए। कि सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हम 4 मर्द अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रख सकते हैं? अब वो, मैं तो अल्लाह हूं नहीं, अब मैं कैसे, मेरा मतलब है, आप कहें तो मैं फोन कॉल कर देखो, मैं सकता हूँ अल्लाह अच्छा मियां को। कमाती हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर तो मैं भी रख सकती हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो अब अल्लाह मियां की जो है ना, वो डिफरेंट बातें हैं। कहेंगी तो कभी अल्लाह मियां को फोन करेंगे। मैं, पार्शियलिटी है यार, ये हाँ, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी वो पार्शियलिटी। मैं कभी कभी अल्लाह मियां से बात करेंगे, मैं फोन लगाता होता हूँ कभी कभी अल्लाह मियां को। साहिल भाई को पता है, तो कभी मैं कभी मैं फोन इंतजार लगा। कर रही हूँ ना एटम, कि मैं मरूं तो घड़ियाल की तरह मुंह फाड़ूं, फिर मैं उनसे कहूँ, क्योंकि देखो नहीं, ये नहीं, भी है लेकिन ना, जब मरेंगी, हमारे मुल्कों ने, मरेंगी एडम आप। देखो, हमारे जी, जी। मुल्कों ने ये भी बताया है कि हमारे जैसी जो औरतें हैं, मैं डिबेट में थी, हमारे जैसी जो औरतें हैं उनके गले में सांप लोटेगा, ठीक है, हम्म। हमें हमें तेल में तला जाएगा। तो मैंने नहीं, नहीं, पूछ नहीं, नहीं, डाला भूल गई एक बीच में बात भूल गई। अल्लाह मियां, कि सॉरी टू से, नो, मैं आपको पता है, सारी दुनिया मुझे जानती है बड़े अच्छे तरीके से, जो लोग मुझे सुनते हैं। मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, और लेडी हो या मर्द हो, मैं सत्य बोलता हूं। तो प्लीज मेरी अगली बात का बुरा ना बनाइएगा। ये इब्ने कसीर ने और कुर्तुबी ने लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं तलेगा वो। अल्लाह ने तलने का तरीका बताया है। वो पहले आपके पिछवाड़े वाले सुराख में से मोटी सी लोहे की जंजीर डालेगा, और आपके नथने वाले सुराख में से, नाक के सुराख में से बाहर निकालेगा, फिर आपको तलेगा। ऐसे अच्छा, ही नहीं जब तलेगा। तल करके एडम, ठीक है, जब तल लेगा तो पनीर पकोड़ा बनेंगे हम के चिकन नहीं, पकोड़ा बनेंगे? उसका भी अल्लाह ने जवाब दिया है। जैसे अच्छा। टिड्डी को तला जाता है, टिड्डी को, जैसे टिड्डी एक जानवर नहीं, जो टिड्डी छलांगे हाँ मारने वाली हाँ टिड्डी हाँ। होती है, जैसे वैसे अल्लाह टिड्डी गोश्त खाएगा उस जमाने में। टिड्डी को कौन तलता है? ये मौलाना लोग? या लिखा हुआ है उन्होंने, मैं जो लिखा हुआ है वो बता यार रहा हूँ आपको। गाइस, वेट एडम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेट। 20,200 लोग। साहिल तू प्रॉफिट है यार साले, कहां से मुंह से बात निकालता है यार। काली नाजिया जुबान जी, वाले। हाँ। नाजिया जी, कैन यू इमेजिन कितने लोग आपको देख रहे हैं लाइव? 20,000 मोर देन 20,258 people watching you live.
एंड ये हमारा रिकॉर्ड बना है इस चैनल पे. थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी. और अभी तो गुफ्तगू चालू है, अभी तो समा बंदा है. मैं चाहता हूँ कि अभी ये समा होमा 25 नहीं करना है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी. मेरे सीनियर से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे केसेस के रिलेटेड बात करना अरे है. सीनियर्स को आज गोली मार दें, उन्हें कहें हाँ, आज मत नहीं. बोलो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. अच्छा वो नहीं, अच्छा वो सच्ची वाली गोली नहीं है ना, यानी जुगाड़ू गोली ना. उन्हें कहते मैं बीमार हूँ इस वक्त, लाइव बैठी हूँ कहीं और. अच्छा अच्छा नाजिया जी, एक सवाल आपसे है. आप परफ्यूम्स लगाती है? हाँ जी, लगाती हूँ. विच इज योर फेवरेट परफ्यूम? शनैल. शनैल का कौन सा? चांस साहिल शनैल, साहब ने मैडमोजाइल? शनैल गिफ्ट देना है. हाँ, मैं भेज ऐसा दूंगा कुछ करने वाले हो तो बोलो. Yes, I'll do that. I'll do that. I'll gift you. Which one? Tell me. Chance Chanel, Mademoiselle, कौन सा वाला चांस का? उसका एक कॉफी फ्लेवर आता है, कॉफी फ्रेग्रेंस आता है, वो वाला. कोको शनल? कोको, यस. यस, चलो मेरी तरफ से नाजिया जी को कोको शनल गिफ्ट. पक्का शाजिया एकदम. जी, आप एक दफा आई हैं और आपको शनैल गिफ्ट मिल गया. मैं इस चैनल पे आ के थक गया, हलक खुश कर दिया बोल बोल के, मेरे को आज तक नहीं मिला. देखो देखो, ये पहले मुसलमान था ना, ये टर्की है. लड़कियों को ये सही कहा आपने. सत्य बोला. नाजिया जी, अगर आप मेरे ऊपर इस तरीके की बात बोलेगी तो मैं कॉल वाली बात बता दूंगा. अरे धमकी दे रहा, धमकी दे रहा. नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी. तुझे घर में समन भेज देंगी वो कोर्ट में आने का. नोटिस पहुंच जाएगा. अच्छा, मैं इस वजह से पूछा आपको नाजिया जी, क्योंकि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा है हाय कि जो लेडी परफ्यूम लगाती है, ठीक है, और वो इस नियत से लगाती है कि उसकी खुशबू जो है वो दूसरे मर्द तक भी पहुंचे, तो ऐसी औरत जानिया है. जानिया पता है आपको? जानिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलो. प्रोस्टिट्यूट. अच्छा, अभी आप कहेंगे कि यार ये कैसी है? प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और हलाला पे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं मर्द, उसका क्या कहना है? ये देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे. हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम. ये देखिए क्या बोल रहे हैं अलग अलग मौलवी हजरात. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत नहीं, मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, तो बदबू ना मेरे को पसीने से, इसलिए मैं परफ्यूम लगाती हूँ. खुशबू जो है कोई दूसरा सुन गए तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है. प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है. Can women wear perfume on? इसको तो हटा दो, ये बहुत बड़ा चिटिंगबाज आदमी है. इसके चेहरे पे कितना नूर है, देखिए नाजिया जी. हाँ, जू जाना पड़ेगा. इसके दो दांत देखो, एकदम खरगोश जैसे लग रहे हैं. कितने पैसे बनाए हैं लोगों को मिसगाइड कर करके, कितने पैसे बनाए हैं, बाप रे बाप. अच्छा, ये क्या कहता है सर? देखो. When women go outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल एक बनी हुई रहती उनकी, बस निकाले और चले. कुछ हुआ कि बस निकाले इधर इधर मुंह के अंदर, ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले. और ये खुशबू का मकसद क्या है? क्या है? दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है. बहर अल्लाह रहम करे. अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं. अच्छा, ये मौलाना जो है ना, इसका भी सुन लेना है खूबसूरत नूर वाले मौलाना का, कि किस तरीके से बात करता है. ये देखिए, सब मदरसा छाप है, दो कलम पढ़ना नहीं जानता. जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहाँ तक के मर्दों की खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन सानिया की हैसियत से उठाया जाएगा. हाय, प्रोस्टिट्यूट बना के उठाया जाएगा क़यामत के दिन. तो क्या करे, सुसु लगा के निकले. पागल, सब पगलेट.
یار ساحل یہ کہاں سے لایا یار, اس کو کہاں سے لایا یار؟ یہ ہمارے جو پرانے ایڈیٹر صاحب ہے جو ویڈیوز ڈالتے تھے, تو ارے ان اس کو کی میں نے بات ہی میں نازیہ جی کی بات کر رہا ہوں, یہ اچھا کہاں سے لے آیا یار؟ کیا کیا اسٹیٹمنٹ بتا دیا یار کہ سسو لگا کے نکلے. چلو آپ دیکھ رہی ہے. جے شری رام. اچھا نازیہ جی رکے رکے رکے, ایک آخری چیز آپ کو دکھاتا ہوں. عورت کو ہاں. تو پرفیوم لگانا نہیں, لیکن اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے 2 محبتیں دی ہیں. حب ٹرانسلیشن میں ڈسپشن ہے, لیکن آپ کو عربی میں بھی دکھا دوں گا. اللہ کے نبی کو اس کے اللہ نے 2 محبتیں دی ہیں. کون سی؟ میسنجر آف اللہ سیڈ, مجھے 2 محبتیں دی گئی ہیں, ایک محبت عورت کے لیے اور دوسری محبت پرفیوم کے لیے. پرفیوم کے لیے. تو مطلب محمد مرد خود پرفیوم لگائے گا اور عورت سسو لگائے گی, پوٹی لگا لے گی بدن میں. ہٹو, الحمدللہ. پاگلوں کی فوج ہے پوری, جھنڈ. ارے مدرسے صاحب, لیکن محبت وومن کے ساتھ بھی دی گئی ہے نا. He was derived by the worldly desires, the desires of the flesh. بھیا محبت کر کر کے اتنی نفرت پھیلا دیا ہے انہوں نے نا, کہ اب لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. اتنی نفرت پھیلا دی ہے انہوں نے, اور محبت نہیں چاہیے ان کا کسی کو. اچھا نازیہ جی, ایک لاسٹ چیز بیفور یو گو, کیا آپ کو, چونکہ ایڈم صاحب نے یہ حدیث بھی آپ کو بتائی ہے کہ رسول اللہ کو پرفیوم اور عورتوں کا کریز تھا, محبت تھی, کیا, اچھا ایک بات بتائیے, ایک نارمل جو انسان ہوتا ہے وہ ایک رات میں کتنی عورتوں کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے نارملی؟ کیوریوسٹی کے ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے حساب سے کتنی عورتوں کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے ایک نارمل انسان؟ مجھے پتا نہیں ہے, میں نہیں جانتی. غلط سوال ہے یار, آپ فیمیل سے پوچھیں ساحل بھائی, یہ غلط ہے, یہ غلط سیٹ پہ نہ بٹھائیں یار. چلو ہم بتا دیتے ہیں کہ 1 یا 2 ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا 3 ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے, دیسی گھی اچھے کھائے ہوں تو. چلو 4 لے لیتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پیارے رسول اللہ ہے وہ ایک ہی رات میں کتنی بیویوں کے ساتھ سیکس کرتے؟ ہاں یہ مجھے پتا ہے, اور میں نہیں بولوں گی, یہ میں جانتی ہوں, مجھے پتا ہے. ہمارے رسول اللہ, اور میں نہیں بولتی ہوں. میرا من کرتا ہے کہ میں بول دوں, ایک دم لائیو چینل پہ بولوں, لیکن میں نہیں بولتی ہوں. ہم بول دیتے ہیں رسول اللہ, اور ہم جو ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے, ہم جو بھی کہتے ہیں وہ اسکرین پہ بتا کر کہتے ہیں. ایڈم صاحب وہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. یہ وہی ہے نا جو بولتا ہے میں نہیں بولوں گا, میں نہیں بتاؤں گا. جی یہ لے ساحل صاحب آگئی سر, اسکرین پہ آگئی, اسکرین دکھا دیں. ہاں کہاں پہ اسکرین آپ کی دکھ نہیں رہی ہے؟ میں لا رہا ہوں. یہ جناب یہ لیں, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس میں ہے 9, اور ایک اور مسلم کی حدیث ہے اس میں ہے 11. So Prophet used to go round all his wives in one night and he had 9 wives at that time. 9 بیویاں ایک ہی رات میں. چمن پراش کا کمال تھا یار یہ ایسا چمن پراش میرے کو بھی بھیج دیں پلیز. کتنا ٹھرکی ہے یہ بھائی, 3 کو سنبھالنا کوئی خالہ جی کا وارہ تو نہیں ہے نا. اچھا اس میں اور ایک کیچ ہے نازیہ جی, اس میں اور ایک کیچ یہ ہے بیفور یو گو, تاکہ آپ کو پتا چلے, اور جب نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے کوئی مولوی آئے تو اس کے سامنے آپ یہ سوال ضرور رکھیے گا کہ رسول اللہ جو ہے وہ 9 بیویوں کے ساتھ سیکس کرتے اور نہاتے صرف ایک ہی بار. ارے یہ لے واپس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ دیکھیں Prophet used to go round all his wives with one bath. 9 بیویوں کے ساتھ ڈنگی فرمانے کے بعد ایک بات لیتا تھا. اچھا اس میں اور ایک کیچ ہے, وہ لاسٹ کیچ بھی آپ کو بتا کے بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ساری چیزیں آ جائیں. اچھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ چونکہ نہاتے ایک ہی بات میں تھے, تو ان کے مطابق ایک فیمیل جب وہ ڈسچارج کرتی ہے تو وہ جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے. یار لیڈی ہے سامنے, تیری مہربانی. ایڈم مووی دکھا دو بس, اس کے بعد ان کو الوداع کریں گے. یہ لے بہت ہی گندا ہے, ابھی آ بھی نہیں آ رہا, سرچ انجن میں بھی نہیں آ رہا, میں نے نہیں دکھا رہا. یار لیڈی ہے یار, یہ میں پڑھی ہوئی ہوں. اچھا سب پڑھے
तो नेक्स्ट टाइम आप ये सवाल भी करना जरा मौलवी हजरात जो शर्मिंदा करना उनको, जो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, उनको बताना कि ये क्या है, औरतों का जो डिस्चार्ज है वो येलो कैसे हो सकता है, नॉर्मल येलो तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है तो येलो डिस्चार्ज समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज येलो, तो उसकी वजह ये है क्योंकि एक बात में रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा और रसूलुल्लाह अगर ऐसी दूसरी के पास जाएंगे, इन्फेक्शन नहीं हुआ साहिल, उसको इन्फेक्शन था, क्योंकि जब वो 10 के साथ करेगा तो इन्फेक्शन ही होगा ना, तो वो हाँ। दूसरों को लेके जाता था। STD, he was So the one who was carrying the STD, career of infection, carrier of, मैंने पढ़ा है, हाँ, ये career मैंने of पढ़ा है। infection। तो लेकिन ये सारी बहरहाल चीजें थी। हाँ, यस एडम नाजिया प्लीज। जी, आपको जाना बड़ी जल्दी है और मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे मजीद गपशप लगाऊं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं खोलना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ी देर बुला के लिए लेंगे, फिर बुला लेंगे। नाजिया जी फिर आना पसंद करेंगी आप हमारे चैनल पर? जरूर आऊंगी, मुझे तो लग रहा था कि मैं किटी पार्टी कर रही हूँ। अरे फिर कभी कभी हमारे चैनल पे भी दर्शन दीजिएगा आके, छोटा सा है एडम सीकर उर्दू हमारे एडम साहब का चैनल है, जरूर उस पे भी हम स्ट्रीम करेंगे, और मजीद आपको और भी ऐसी ऐसी बातें निकाल कर एडम साहब लाते हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें, पूरा ये इंसाइक्लोपीडिया है हमारे एडम साहब। आप जो चीज बोलेंगी चुटकियों में एडम साहब जो है वो आपको स्क्रीन पे उसकी दलील देंगे कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो ही इज सो मच नॉलेजेबल। नाजिया जी, मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा स्पेशली वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि यू बाय योरसेल्फ इज अ फीमेल, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, वी लाइक नथिंग इज हिडन। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइम अगो, उसका नाम था कुतिया इन द वेस्ट, लाइक which is a dictionary word, please don't mind that, it's not an abusive word, it's a dictionary word. Kutia, bitch in the west versus कुतिया in Islam, right? लेकिन मैंने इस्लाम में कुतिया दिखाने की बजाय, क्योंकि कुतिया को तो आपने वैसे ही मार देना है, एवरी ब्लैक डॉग हैज टू बी किल्ड, और कोई डॉग आप वैसे नहीं रख सकते, तो कुतिया इन द इस्लाम रखने की बजाय मैंने वहां पे एक मुस्लिमा के साथ कंपैरिजन किया था, और मेरे पास कोई 15 लोग आए थे जिनके साथ मैंने डिस्कशन और डिबेट किया था, और कोई भी बंदा वेस्टर्न कुतिया, यानी लिटरली एक डॉग की फीमेल जो वो अपने घर में रखते हैं एज ए पेट, उसके राइट्स को जब इस्लामिक फीमेल के राइट्स के साथ कंपेयर किया था, तो ऑलवेज वेस्टर्न डॉग जीत गई थी, ऑलवेज। there's an 8 hours long stream on my channel, the title is कुतिया in the west versus कुतिया in Islam, ये एक टाइटल है मेरे चैनल पड़ा हुआ है इस वक्त। एवरी सिंगल टाइम किसी एक भी राइट के बारे में बात की थी, तो वो वेस्टर्न बिच जो कि कोई बंदा बाजार से खरीद के या अडॉप्ट करके लेके आता है, ऑब्वियसली वेस्ट में आपको पता है खरीदना इज अ बैड वर्ड फॉर अ एनिमल, वो दे से अडॉप्शन, सो वो अडॉप्ट करके जो लेके आता है वो फिर भी राइट्स में जीत गई थी। तो जब भी आपके पास टाइम हो, मैं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करता हूँ सिर्फ, लेकिन जरा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, कोई 4 घंटे कम से कम। तो आपके साथ मैं कुछ डिटेल में जाना चाहूंगा कुछ चीजों की, और इंडियन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर, लॉ, एंड देन इस्लामिक शरिया लॉ, क्योंकि मैं आपको शाफी का शरिया दिखाऊंगा, मैं आपको मालिक का शरिया दिखाऊंगा, मैं हनीफा का शरिया दिखाऊंगा, मैं कुरान के दिखाऊंगा, और मैं आपको हदीस दिखाऊंगा। इन 5 चीजों के जरिए हम कंपेयर करेंगे। मैंने उस टाइम पे वेस्ट के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूं, जैसा कि आपको पता लग गया। उर्दू एडम सीकर उर्दू मेरा चैनल का नाम है। आई एम अ पाकिस्तानी, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। मैं वो हिंदुस्तान के उस टूटे हुए बाजू से पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ था जो कि टूट गया 1947 के अंदर। लेकिन आई वुड लाइक टू गो विद यू इन डिटेल इंडियन लॉ, बिकॉज आप एक एडवोकेट हैं, लॉ को अच्छे तरीके से जानती हैं। अब हम इंडियन लॉ के जरिए वुमेन को कंपेयर करेंगे। विल यू बी विलिंग टू डू दैट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, इंडियन लॉ वाला। परफेक्ट, परफेक्ट, एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। साहिल भाई, द माइक इज योर्स। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारी दावत को कबूल करने का। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगी हमारे छोटे चैनल पर, लेकिन आप आई, और आपकी वजह से क्या कहते हैं उसको, आपके नूरानी अपीयरेंस की वजह से आज हमने 21,000 प्लस लाइव व्यूवर्स हमने क्रॉस किया है। इट्स हिस्ट्री फॉर अस, रिकॉर्ड बन गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर के और भी कई सारे और तुम भूलोगे नहीं साहिल कि तुम
मुझे शनाल परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हो। हाँ नहीं भूलूंगा मैं। और साहिल मैं 2 नहीं नंबर वाला नहीं, ओरिजिनल वाला भेजना है, 2 नंबर वाला नहीं भेजना। हाँ वो 2 नंबर ये मत भेज देना। नहीं नहीं, ओरिजिनल वाला आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं तो फिर मैं अभी बैठा दूंगी अपनी सेक्रेटरी को। क्लोन बनवा के भिजवा देना आप। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया नाजिया जी, एंड आई होप के Okay, और कई सारे स्ट्रीम्स हम साथ में करेंगे और कुछ सीरियस टॉपिक्स भी लेंगे। आज तो समझिए फर्स्ट स्ट्रीम था और माहौल भी बड़ा एकदम लाइट था, हंसी मजाक भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।